welcome to your own channel, The Nation Needs You All About SSB. This is again an interview video and the guest for today is Amisha Dahiya. I need to take this moment to thank all those young and bright girls who choose The Nation Needs You as a platform to convey their learnings and experience. As Shanakya has already said that your own life is not enough to learn every lesson. So you need to learn from the experiences of other people as well. Hence it makes it more important to watch the whole interview till the end. And on this note, I would like to re-emphasize the fact that we are present on the Play Store as well. Yes, the Nation Needs You app, which you can download by the link present in the description box. Guys, the Nation Needs You app is present on Play Store. All you need to do is to just go to the search bar, type in here SSB Nation Needs You. The moment you will type it, the very first app with the green logo will come, and this is the app which you need to install. Click on install and it will not take much time. The installation is very fast because the app is not that heavy, so just wait for a while. Meanwhile, you can also go to the review section. You can just give your reviews as well. Whatever you feel like about the app, you can just go and state there. You can give ratings also in terms of stars. Now the moment the installation is done, you will get the option to open the app. I know that you all are pretty smart in that, but just as a bit of information I'm telling you, when it will open, then it will ask you for a number. So you will give your number. The moment you will give your number, one OTP will be sent to you. You need to put that OTP here. So for me it is 4878. Click on verify. Click on continue. It will get continued. Now do you see these three lines? Click on this. Then you will go to study material. Under study material you will get something related to the sports affair. Click on accept. Allow. Then you will get the sports affairs. Similarly, you will get the 2020 updates. There are certain things regarding the English section, important military exercises, important list. Now this is something which is actually going to be beneficial for all of you, not only for the CDS or FCAT, but so many other examinations like list of Mughal emperors, list of Indian presidents, the different dams, states, rivers, important days, officer ranks, first in India, international organizations, awards, fields, Indian prime ministers, and a lot more. So not only one such section, but there are several other sections of the same kind. So I would recommend each and every one of you to please go and download this app and get access to these materials free of cost. All the best, everyone. So, hello Amisha and welcome to The Nation Needs You. Thank you, Sagarika. So Amisha, I don't have just one reason to congratulate you. You are not only recommended, but you also have qualified CPSS. So a big congratulations from whole Nation Needs You team. Thank you, Sagarika. It's an honor to come on your channel. So Amisha, now I would be, asking a lot of questions from different aspects of your journey. Not only recommendation, but CPSS, medical. So starting with the very first question. See, being chess number 1 is not that easy. क्योंकि जब आप चेस नंबर फर्स्ट रहते हो तो हर राउंड हर प्रोसेस सबसे पहले आपके थ्रू होता है, चाहे वो लेक्चरेट का हो चाहे वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स का हो. नाउ यू वर वन सच कैंडिडेट हु वाज चेस नंबर 1. तो उसकी वजह से क्या कोई प्रेशर तुमने फील किया इन योर अटेम्प्ट, और क्या ऐसा लगा कि शायद अगर मैं बाद के चेस नंबर्स में रहती तो थोड़ा इजियर होता? नहीं, आई थिंक स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा फील हुआ था कि प्रेशराइज्ड कि हाँ फर्स्ट नंबर पे हो, हर जगह फर्स्ट जाना है. बट विद टाइम आई गॉट कंफर्टेबल विद इट बिकॉज you see you cannot change with it. You have to make up your mind कि if I will let it affect my performance or I'm going to use it as my advantage. तो मैंने वही करा था स्टार्टिंग में. इवन स्क्रीनिंग में भी मैं चेस नंबर 1 थी और आफ्टर स्क्रीनिंग भी. तो मैंने अपना माइंड उसी हिसाब से मेकअप करा था कि मैं इससे अपनी परफॉर्मेंस अफेक्ट नहीं होने दूंगी. इवन उसका मुझे काफी बेनिफिट भी हुआ था. सपोज पीपीडीटी का ये एग्जांपल ले लेते हैं, तो यू आर सिटिंग एट द फर्स्ट, आप नरेशन से क्विकली डन हो जाते हो, ठीक है. तो देन यू कैन लिसन टू अदर कैंडिडेट्स केयरफुली.
बट इफ यू आर सिटिंग इन द मिडल और एट द एंड, आप कहीं ना कहीं अपनी स्टोरी रिसाइट करते रहते हो माइंड में, तो आप दूसरों के पॉइंट्स नहीं सुन पाते, आप कॉमन पॉइंट्स पिक नहीं कर पाते, बिकॉज आप अपनी स्टोरी रिवाइज कर रहे हो जब तक आपकी टर्न नहीं आ रही है। तो मैंने क्या करा था, इसीलिए क्विकली डन हो गई थी, ये मुझे एडवांटेज हुआ था। मैंने सबके पॉइंट्स सुने बहुत प्यार से और सबसे कॉमन पॉइंट्स पिकअप कर लिए थे फॉर द ग्रुप डिस्कशन। तो अब क्या होता है, जब आप दूसरे का सुन रहे हो ध्यान से अटेंटिवली, तो एक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो आउट ऑफ 10 गर्ल्स आउट ऑफ 16 ने अप्रोक्सीमेटली अपनी जो स्टोरी थी, नरेशन थी, वो मुझे देखकर बोली गई थी। अब पूरी की पूरी स्टोरी मेरे तरफ देखकर बोली। तो आई थिंक दैट वाज अ बोनस पॉइंट, एंड एसएसएस ने भी वो नोटिस करा होगा। तो बट द वन डिसएडवांटेज दैट आई फाउंड इज कि ग्रुप डिस्कशंस में आप एंड पे बैठे हो, तो आपको ज्यादा बोलने नहीं दिया जाता, आपको इन्वॉल्व नहीं करते हैं वो लोग। तो दैट वाज द ओनली पॉइंट। पास में आप चेस नंबर 1 हो या चेस नंबर 20 हो, आपको सेम प्रोसेस से गो थ्रू करना है, तो उससे ज्यादा इफेक्ट होने नहीं देना चाहिए। So, Amisha, you actually gave a very different perspective of being chess number one. Usually, candidates they get pressurized because everything is new for them. और अगर उनका first attempt रहता है, then obviously everything is brand new. So now I'm going to shed light on a very different aspect of your personality, which is a travel freak. You are traveling since 16. तो मुझे ये समझना है कि traveling के इस इस habit से या इस routine से has it changed you as a person? या तुमने देखा कि you became more courageous, self-dependent, and how has it framed you as a person? So, coming to your question, I think it changed my overall personality because earlier I was a very rigid person and not very flexible. तो मुझे आदत थी कि सब कुछ प्लान करके चलने की, और जब प्लान के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता था, वो मुझे काफी अनकंफर्टेबल करता था। बट जब आप ट्रैवल करते हो, यू सी 100% चीजें आपके अकॉर्डिंगली नहीं जाएंगी कभी भी। तो धीरे धीरे क्या होता है, यू गेट कंफर्टेबल विद द चेंज, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगता है। जैसे आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो खुद चीजें हैंडल कर रहे हो, तो सेल्फ रिलायबल हो आप। ऑब्वियसली एंड द करंट सिनेरियो ऑफ इंडिया, अ गर्ल को अकेले ट्रैवल करने में यू नीड करेज। तो आई थिंक कुछ चीजें मेरी पेरेंटिंग की वजह से ऐसी हुई हैं कि वो ऑलरेडी मेरे अंदर थी। मुझे स्टार्टिंग से मेरे फादर ने बहुत इंडिपेंडेंट बनाया था, हर चीजें खुद करने से करा कि खुद करो, खुद प्रॉब्लम में अगर जा सकते हो तो उससे बाहर भी आ सकते हो। तो ये सब चीजें थी, बट मुझे चेंज में, उसके साथ कंफर्टेबल होने में बहुत हेल्प करा ट्रैवल ने। तो आई थिंक मेरी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, एसएसबी में भी यही होता है। आप इंटरव्यू एक प्लान करते हो कि ऐसे 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 जाएगा, बट वो अलग ही डायरेक्शन में चला जाता है। Absolutely, absolutely. बच्चे प्रेशराइज होके काफी चीजें गलत कर देते हैं। अब मेरे साथ जीडी में सेम हुआ था। मैं एंड पे बैठी थी, मुझे ज्यादा पॉइंट्स पिकअप करने को नहीं मिले, नहीं बोलने दिया गया। तो अब वहां पे मैं भी थोड़ी सी प्रेशराइज हो गई थी कि यार अच्छा नहीं हुआ है, अब क्या करूं। बट अगर मैं आगे वाले टेस्ट भी उसकी वजह से अफेक्ट होने देती, तो वो मेरे लिए लॉस था। तो आई थिंक मुझे काफी हेल्प करा है ट्रैवल ने इस चेंज के साथ कंफर्टेबल होने में, मुझे फ्लेक्सिबल बनाया है, और काफी पर्सनालिटी मेरी डिफरेंट हुई है पहले के अकॉर्डिंगली, ऐसा मुझे फील होता है। Okay. So Amisha, you raised a very important point here कि अगर कोई एक स्टेज हमारे मन के हिसाब से नहीं जाता है, then we should not make it affect the other stage or the other rounds. So now I would like to ask you a question related to CPSS. CPSS जो है उसे कुछ लोग डिफिकल्ट रेट करते हैं बिकॉज ऑफ द MCQ क्वेश्चंस ऑफ राउंड 1, और कुछ लोगों के लिए वो केक वॉक होता है। So as per you, because you have cleared it, so I would like to understand कि ऐसा कौन सा राउंड था which you would rate as difficult, और अगर वो डिफिकल्ट था तो तुमने किस स्ट्रैटेजी के साथ उसको अप्रोच किया? मुझे एमसीक्यू राउंड के कंपैरेटिवली गेम्स थोड़ी डिफिकल्ट लगी, बिकॉज एमसीक्यू राउंड से आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर सकते हो। एयरक्राफ्ट वाले क्वेश्चंस यू कैन ऑलरेडी प्रिपेयर इन एडवांस, बट गेम्स के लिए आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। वैसे गेम्स कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, इवन तो देयर आर कोचिंग्स, बट उस लेवल का नहीं है, थोड़ा डिफरेंस आता है। और तो मुझे कंपैरेटिवली, अब मैंने आज तक गेम्स नहीं खेली थी कभी भी, तो मुझे गेम्स में थोड़ी डिफिकल्टी लगी कंपेरेटिव टू एमसीक्यू राउंड। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन कि
किसी किसी को एमसीक्यू राउंड डिफिकल्ट लगता है. देयर आर सर्टेन टेस्ट, उसमें काफी सारे टेस्ट है, 9-10 टेस्ट है एंड बैक बैक हो रहे हैं वो, ठीक है. तो कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जो आपको डिफिकल्ट लगेंगे, किसी और को कुछ और लगेगा डिफिकल्ट, आपको कुछ और डिफिकल्ट लगेगा अकॉर्डिंग टू योर बैकग्राउंड. आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आपको वो इजी लगेगा, बट ऐसा नहीं है कि क्यूमुलेटिव स्कोर ऐड हो रहा है. See, अगर आपका एक टेस्ट गलत जा रहा है, थोड़ा आपके अकॉर्डिंगली नहीं गया, तो उस पर स्ट्रेस आउट नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, बिकॉज आपका क्यूमुलेटिव स्कोर ऐड हो रहा है, तो आप बाकी वाले टेस्ट और अच्छे से दो, ठीक है. तो एमसीक्यू राउंड आप इजीली टैकल कर सकते हो, प्लस बिकॉज उसमें बेसिक मैथ्स है, ज्यादा हाई लेवल की मैथ्स नहीं आएगी, तो एवरीवन कैन डू इट इजीली. एनडीए वाले बच्चे हैं जो 12th पास आउट हैं जस्ट, या 12th में हैं, वो भी सेम एग्जाम दे रहे हैं, हम लोग ग्रेजुएशन के बाद दे रहे हैं, तो इट इज ऑफ द सेम लेवल, यू कैन गेस इट, ठीक है. एब्सोल्युटली. तो ज्यादा सीपीएसएस के लिए प्रिपरेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो काम माइंड से जाओ, इजीली जाओ, आराम से होगा. मुझे गेम्स थोड़ी कंपेरेटिवली डिफिकल्ट लगी थी बिकॉज आई वॉज नॉट यूज टू प्ले गेम्स. तो मैंने क्या करा था, जैसे हर राउंड होता है उसके बीच में आपको टाइम मिलता है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर सकते हो. तो मैंने खुद को शांत करा कि कोई बात नहीं, अगर ये अच्छा नहीं हुआ है मैं नेक्स्ट वाला अच्छा करूंगी. तो धीरे धीरे शांत कर करके मैंने बहुत आराम आराम से गेम्स खेली थी, ताकि काम स्टेट ऑफ माइंड रहे और मैं इजीली कवर कर सकूं सब कुछ. तो काफी गेम्स ऐसी थी जो मेरे से नहीं हुई थी, बट लास्ट में कुछ गेम्स ऐसी आई जो मेरे से हो रही थी, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि कोई बात नहीं, लास्ट वाला नहीं हुआ है तो आगे वाला हो जाएगा. तो स्ट्रेस आउट नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है, क्यूमुलेटिव स्कोर ऐड होगा, यू कैन डू इट. ओके. सो अमिशा, मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रही हूँ तुम्हारे आंसर्स में, वो ये है दैट यू ऑलवेज अप्रोच अ कामनेस. यू थिंक कि अगर ठीक है ये गलत हो गया या ये हमारे हिसाब से नहीं हुआ, लेट इट बी, बट नेक्स्ट में हम अच्छा कर सकते हैं. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट हियर. Have you practiced it over time? Yeah, this is the part of your personality. Like many students, they get panicked. They just lose everything the moment one round goes wrong. But how did you make sure कि ये चीज ना हो तुम्हारे केस में? Actually, I'm not a very calm person. मैं भी बहुत doesn't seems. वो बाहर से ऐसा लगता है, बट एक्चुअली मैं हूँ, और मैं भी थोड़ा बहुत पैनिक हर जगह करती हूँ, करा है मैंने भी, बट तब वो उस मोमेंट पे आपको डिसाइड करना होता है, आपको पैनिक चूज करना है या काम स्टेट ऑफ माइंड चूज करना है, बिकॉज इट इज गोइंग टू डिसाइड योर आउटपुट. तो जस्ट अ मैटर ऑफ सेकेंड है, कोई एक चूज करो, खुद को थोड़ा काम करो, डीप ब्रेथ स्लो एंड लेट इट गो. आगे जो होगा वो देखेंगे, क्योंकि जो चीज होनी है वो हो चुकी है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो बाकी वाला क्यों इफेक्ट होने दे रहे हो उससे. ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल. सो नाउ आई एम गोइंग टू कम टू डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. वो है एयरक्राफ्ट मीटर वाले. यू वोंट बिलीव, ऑलमोस्ट एवरी वीक वी गेट क्वेश्चंस जहां पे कि कैंडिडेट्स को इसी बात का डर रहता है कि एयरक्राफ्ट के जो क्वेश्चन है, स्पेशली जो मीटर से रिलेटेड होता है, उनको कैसे टैकल करें. तो तुम्हारे केस में तुमने क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी? मैंने क्या करा था, उनको एडवांस में प्रिपेयर कर लिया था. देयर आर मेनी यूट्यूब वीडियोज अवेलेबल, इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल है जहाँ से आप एडवांस में प्रिपेयर कर सकते हो. प्लस इट विल टेक यू मैक्सिमम ऑफ 2 आवर्स एयरक्राफ्ट मीटर्स को प्रिपेयर करने के लिए. बहुत इजी है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ओके, तो वहां से मैंने प्रिपेयर करा. प्लस एयरक्राफ्ट मीटर्स में द बेस्ट मेथड और यू कैन से स्ट्रैटेजी यू कैन यूज इज एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, अब एक ही टेस्ट ऐसा होता है जिसमें आपको 6 के 6 मीटर शो करे जाते हैं. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, दे आर वेरी लेंदी, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक एक ऑप्शन फुल्ली रीड करो. तो एलिमिनेशन मेथड चूज करो. सपोज डायरेक्शन वाला मीटर आप देख रहे हो कि किस डायरेक्शन में है, तो आपसे डायरेक्शन तो यू कैन क्लियरली गेस, तो ऑप्शंस कट आउट करते जाओ जो जो नहीं है, तो यू विल लेफ्ट विद द 2 ऑप्शन और समटाइम इवन विद द आंसर. तो ऐसे क्विकली होता है. तो मैंने एयरक्राफ्ट वाले मेथड्स में एलिमिनेशन मेथड यूज करा था, तो मेरे सारे क्वेश्चन विद इन टाइम हो गए थे. एंड फर्स्ट इज जो डायरेक्शन टेस्ट होता है एयरक्राफ्ट मीटर में, दैट इज वेरी इजी. आपको वहां पे सर होंगे, इंस्ट्रक्टर होंगे, दे विल गाइड यू.
आपको सबसे पहले समझाया जाता है आराम से, बिकॉज द टेस्ट इज सपोज टू बी दैट वे। प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बट इवन इफ यू वांट टू डू इट आप कर सकते हो। बिकॉज सपोज आप अनप्रिपेयर्ड जाते हो तो माइंड में एक अनवांटेड स्ट्रेस रहता है कि यार प्रिपेयर Yes, नहीं yes. करा, गलत चला जाएगा। तो इसलिए एडवांस में इफ यू वांट टू डू इट यू कैन प्रिपेयर। बाकी Okay. ऐसा जरूरत नहीं है, बिकॉज हर टेस्ट से पहले आपको वो कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं, आपको टाइम भी दिया जाता है कि आप इवन इफ यू हैव अ डाउट आप पूछ सकते हो कि सर ऐसे ऐसे है, आपको टाइम दिया जाएगा। जब आप बोलोगे कि यू आर कंफर्टेबल देन दे विल गो विद द नेक्स्ट राउंड। So, Amisha, now I'm going to the two different rounds of CPSS. जैसे अगर हम MCQs क्वेश्चन की बात करें तो MCQ क्वेश्चन में यू हैव टू सॉल्व मैथ्स, यू विल गेट द आंसर। लेकिन जो राउंड 2 है वो ड्रामेटिकली ऑपोजिट होता है, जिसमें कि आपको पूरा का पूरा सेटअप एक गेमिंग सेटअप जैसा मिलेगा। तो ये दोनों की दोनों जो राउंड्स हैं ये एकदम ऑपोजिट हैं। नाउ देयर आर सर्टेन कैंडिडेट्स जो कि एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा गेम्स खेलते हैं और उनको गेम्स का जो है ज्यादा आइडिया रहता है। नाउ इन ऑर्डर टू हैंडल दीज काइंड ऑफ टू ऑपोजिट राउंड्स, तुम्हें क्या लगता है व्हाट शुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी? यू टेल मी अबाउट योर स्ट्रैटेजी व्हिच यू अडॉप्टेड, बिकॉज यू आर नॉट अ पर्सन हु वाज इनटू गेमिंग। तो तुमने कैसे इसको मैनेज किया? मैंने ऐसे मैनेज करा कि माइंड सेटअप करा कि सपोज व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पायलट, कि आप इमरजेंसी सिचुएशंस में करेक्ट डिसीजंस ले रहे हो। वो करेक्ट डिसीजन कब ले पाओगे? जब काम स्टेट ऑफ माइंड होगा, ठीक है। अब आप पैनिक नहीं करोगे वहां पे। तो सेम चीज गोज फॉर द MCQ राउंड। बोथ ऑफ द टेस्ट आर मेड टू प्रेशराइज यू, कि आपको प्रेशर डालेंगे एंड देन आउटकम देखेंगे वो कि आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो। आई थिंक इन द गेम्स ऑल्सो बैक टू बैक गेम्स किस लिए हैं? साइकोमोटर स्किल्स तो आप वैसे भी चेक कर सकते हो एक गेम देखकर, दो गेम्स देखकर, बट वो आपको प्रेशराइज करने के लिए है कि आप प्रेशर में, अंडर प्रेशर कैसा वर्क कर रहे हो। तो गेम्स में भी मैंने क्या करा था, अपना टाइम लिया था, जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आराम आराम से जो हो रहा है उसको करो, देन रेस्ट लो सेकेंड राउंड स्टार्ट करने से पहले। फ्रेश माइंड करो, देन स्टार्ट द अनदर राउंड। एंड सेम गोज फॉर द MCQ। उसमें भी आपको टाइम दिया जाएगा, आप अपने हिसाब से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर सकते हो, नेक्स्ट टेस्ट। तो देयर विल बी सर्टेन टेस्ट। मेरे जितने भी फ्रेंड्स CPSS क्वालिफाइड है, मुझे सबने ये सजेस्ट करा था कि जो MCQ राउंड है, एयरक्राफ्ट मीटर एवरीवन कैन डू इट, इट इज इजी। और जो एप्टीट्यूड राउंड होगा ये कोई बात नहीं बताता कि वो थोड़ा स्लाइटली डिफिकल्ट आता है। आई एम फ्रॉम मैथ बैकग्राउंड, ठीक है। मैं काफी अच्छी भी थी मैथ्स में, नॉट टू बी वेरी कॉकी, बट वैसे तो मुझे भी थोड़ा डिफिकल्ट लगा था। एंड मेरे जितने भी फ्रेंड्स है CPSS क्वालिफाइड, सब ने यही बोला है कि मैथ्स जो पार्ट होगा स्लाइटली डिफिकल्ट होगा। तो अगर वो टेस्ट नहीं हो रहा है तो डोंट पैनिक, जस्ट द ओनली वन, डोंट पैनिक एंड हैव द काम स्टेट ऑफ माइंड। CPSS के लिए कोई प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, यू जस्ट नीड अ काम स्टेट ऑफ माइंड फॉर बोथ ऑफ द राउंड्स। Okay. Baki, even if you want to prepare it for the games, there is an app called Do It. It is a game app. I played it extensively for about 2 months. क्योंकि मुझे थोड़ा था कि मैं कर लेती हूँ, ताकि वो अनवांटेड स्ट्रेस नहीं चाहिए था मुझे वहाँ पे। तो इवन इफ समवन वांट टू प्ले एनी गेम, तो देयर इज अ डू इट ऐप। एंड MCQ राउंड्स के लिए मैंने भी एप्टीट्यूड काफी प्रिपेयर करा था, एंड आई थिंक उसका कोई यूज नहीं था, मुझे हेल्प नहीं हुई वहां पे जाके। So if for MCQ round you want to prepare, then prepare the aircraft meters in advance. एप्टीट्यूड को करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने करा था और वो मुझे हेल्पफुल नहीं लगा वहां पे। Amisha, this is quite surprising कि not only you, but there is another CPSS candidate जिनको हमने interview किया, and she also has same point that she also practiced the math session beforehand, and it was of no use for her as well. So like this is the kind of test जहाँ पे कि बहुत ज्यादा पहले से प्रैक्टिस करके जाने का कोई खास फायदा नहीं है। Rather, examination hall में you have to just take control of yourself and then you may excel. Okay. So Amisha, now I would be asking you the questions regarding the screening. कई लोगों के लिए screening ही clear कर पाना बहुत बड़ा काम है. They are not able to do it. So starting with the very first round, which is PPDT. So तुम मुझे ये बताओ that what was your picture in PPDT and how did you frame the story?
जैसे जो नए बच्चे होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, उनके दिमाग में ये चीज रहती है दैट आई हैव हर्ड अबाउट OLQ, सो आई विल इनकलकेट दैट OLQ इन माय पिक्चर, irrespective of the fact कि वो पिक्चर में सिंक हो रहा है कि नहीं. So what was your stand on this? सो हमारी पीपीटीटी पिक्चर में क्या था, देयर वर 3 कैरेक्टर्स, एन ओल्ड लेडी एंड अ कपल. सो दे वर लुकिंग एट समथिंग. तो मेरे माइंड में क्विकली ये स्ट्राइक हुआ कि दे आर लुकिंग एट समथिंग, तो वो कुछ फेयर देखने गए हैं, कुछ देखने गए हैं. तो मेरा फर्स्ट थॉट ये था, तो मैंने उसी को ही बिना ऑल्टर करे उसी पे ही स्टोरी बनाई, दैट द लेडी, आजकल सिनेरियो में क्या हो रहा है फॉर द डे टू डे लाइफ से उसको मैंने रिलेट करा कि जो लेडी है वो अपने वर्क में ज्यादा बिजी है, तो फैमिली टाइम कट आउट हो रहा है. तो मैंने बनाया कि शी हर वीकेंड पे अपनी फैमिली को बाहर लेकर जाती है, दे स्पेंड द फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम टुगेदर. तो धीरे धीरे वो उनका वीकेंड रिचुअल बन गया. तो मेरी बहुत सिंपल सी स्टोरी थी, सबसे डिफरेंट स्टोरी थी, बहुत बेसिक स्टोरी थी, कोई भी बना सकता है. एग्जैक्टली. तो मैंने ये रियलाइज करा था जब मैं प्रैक्टिस करती थी एसएसबी जाने से पहले, जो आपने बात बोली है कि OLQs इनकलकेट करना जबरदस्ती, वो मैं प्रैक्टिस करते टाइम करती थी. मैंने रियलाइज करा था कि 4 मिनट्स निकल जाते थे और मेरी स्टोरी फाइनलाइज नहीं होती थी, कि मैं हर बेटर ट्राई कर रही हूँ, और बेटर स्टोरी, और बेटर स्टोरी, और बेटर स्टोरी. तो वो मेरे अगेंस्ट जा रहा था, बिकॉज व्हेन यू आर ट्राइंग टू ऑल्टर योर फर्स्ट थॉट, आप अपनी पर्सनालिटी को ऑल्टर करने का ट्राई कर रहे हो. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. ठीक है, तो वो मिसमैच कहीं ना कहीं हो जाएगा. तो मेरे माइंड में टैट्स में भी और पीपीटीटी में भी जो फर्स्ट थॉट आया, वेदर इट इंक्लूडेड OLQs और नॉट, मैंने वही लिखा. मैं ये माइंड सेटअप इस हिसाब से करके गई थी कि मेरी आदत है परफेक्शन अचीव करने की, ये नहीं तो और थोड़ा बेटर, और थोड़ा बेटर, और थोड़ा बेटर. तो एसएसबी से पहले मैंने डिसाइड करा था कि प्रैक्टिस करते टाइम थोड़ी गड़बड़ हुई है, बट डोंट लेट इट अफेक्ट योर परफॉर्मेंस इन द एसएसबी. तो मेरे माइंड में जो फर्स्ट थॉट क्लिक हुआ, मैंने जस्ट फटाफट वही लिखा, कोई जबरदस्ती OLQs ने इनकलकेट करे. एंड आई थिंक वन शुड नॉट डू दैट, because you will try to alter your personality and it will mismatch and it will go against you. Absolutely, absolutely. So, like अमीषा, ये तो पीपीटीटी थी, लेकिन पीपीटीटी में इट्स अ वन मैन शो, क्योंकि स्टोरी भी आपकी रहती है, नरेशन भी आप करते हो, राइट? लेकिन ग्रुप डिस्कशन, नाउ ग्रुप डिस्कशन इज समथिंग व्हिच इज नॉट एन इजी वर्क फॉर एवरीवन, और स्पेशली तब जबकि वो फिश मार्केट में कन्वर्ट हो चुका है. तो आई वुड लाइक टू नो कि तुमने कितनी बार जीडी में अपने पॉइंट्स रखे, और अगर फिश मार्केट हुआ तो उसके बाद फिर तुमने क्या किया? Actually, I was not very satisfied with my GD performance. मैंने सिर्फ 3 या 4 times पॉइंट्स पुट आउट करे थे, बिकॉज आई वाज सिटिंग एट द एंड, एंड जो मिडल में बच्चे होते हैं वो आपस में ही करते रहते हैं, साइड वालों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता. सो देयर वर 3 girls who were very dominating in our group. So it was like they two were having conversation with each other. बोले जा रहे हैं. तो मैंने क्या करा था वहां पे, अब जब कोई बोल रहा है आप बीच में टोक नहीं सकते. इवन इफ यू ट्राई कि आप बोलो, तो वो आपको बोलने नहीं देंगे, बिकॉज दे आर फिनिशिंग देयर सेंटेंस. तो उसका कोई फायदा नहीं है. तो जब मुझे ऐसा लगता था कि हाँ उनका सेंटेंस फिनिश होने वाला है, आई यूज्ड टू बी अ लिटिल असर्टिव कि लिसन गाइस, एंड देन सब थोड़ा चुप हो जाते थे, तो क्विकली आई विल पुट आउट माई पॉइंट. तो आई थिंक दैट मैटर्स. प्लस ऑल्सो जीडी के लिए आई विल से दैट बी वेरी कॉन्शियस ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज. दैट इज वन पॉइंट आई वॉन्ट टू पुट आउट. जब आप जीडी में सबको नोटिस करोगे ना, कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठे है, सब अलग अलग तरीके से बैठे होंगे. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, बिकॉज इफ यू हैव द कंट्रोल ऑफ योर बॉडी, यू हैव द कंट्रोल ऑफ योर माइंड, एंड माइंड इज द मोस्ट पावरफुल टूल. अगर आप माइंड को कंट्रोल कर रहे हो तो आप कुछ भी कर लोगे. तो मैंने जीडी में सिर्फ यही कहा था कि अगर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, एटलीस्ट आई हैव द कंट्रोल ऑफ माई बॉडी लैंग्वेज. यू विल सिट स्ट्रेट, इधर उधर नहीं झुकना है. जैसे बाकी लोग लड़ते वक्त फिश मार्केट में इधर उधर हो जाते हैं, आगे करके बोलने लगते हैं, हाथ हाथ इधर उधर करने लगते हैं, हैंड जेस्चर्स होते हैं बहुत सारे. तो डोंट डू दैट. सिट काम. अगर कोई बोल रहा है उसको बोलने दो, ठीक है, बिकॉज इट विल गो अगेंस्ट देम कि दे आर नॉट लेटिंग एनीवन एल्स स्पीक. अगर आप बीच में किसी को इंटरप्ट करते हो जब वो बोल रहा है, तो दैट इज द रॉन्ग. आप यू लेट हिम कंप्लीट हिज सेंटेंस. तो जब आपको लगता है कि उनका सेंटेंस कंप्लीट होने वाला है,
then quickly grab the opportunity, be a little assertive, not rude, assertive, थोड़ा सा loud होके बोलो कि I want to say this and this, और keep your point very short, because if वो lengthy होगा तो आपको कोई cut कर देगा बीच में, तो आप complete नहीं कर पाओगे. Keep your point very short and quick and precise. आप फटाफट बोल दो और quality point बोलो ताकि आपकी बात कोई सुन ले. बिल्कुल, वेटेज हो. ओके ओके. सो अमीषा, जो 2 लड़कियां बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थी, वर दे एबल टू गेट स्क्रीन्ड इन? They got screened in, but they did not get recommended. ओके. सो अमीषा, यहाँ पे ना 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमने रेज किए जो कि फ्रेशर्स नहीं बताते हैं जल्दी या उनको पता ही नहीं होता है. सबसे पहला बॉडी लैंग्वेज. So I would like to understand that like was there any specific practice which you adopted before SSB? क्योंकि होता क्या है कि जब आप बोल रहे होते हो फ्लो में और गुस्सा रहता है कि मुझे कोई बोलने क्यों नहीं दे रहा और वो क्यों बोल रहा है, तो उस टाइम पे लाइक तुमने प्रैक्टिस की थी इस चीज को कि आई विल सिट एंड आई विल वॉच. और तुमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पॉइंट आउट की, दैट कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट. तो मुझे ये माइंडसेट समझना है कि तुम्हें कहाँ से पता चला कि ये चीज करनी चाहिए? मैं एक्चुअली, मुझे क्या था, मैं बहुत एक्सटेंसिवली रीड करती थी एसएसबी के बारे में. मुझे नॉलेज जितनी ज्यादा मिलती है उतना बेटर है मेरे लिए, तो मैं रीड करती रहती थी. एंड ये बॉडी लैंग्वेज वाला पॉइंट मैंने बहुत जगह पढ़ा था कि यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज. तो मेरे को ये था कि जो चीज मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ उसको लेट इट गो, जो चीज मेरे हाथ में है मैं उसको कंट्रोल करूंगी. तो बॉडी लैंग्वेज मेरे हाथ में थी. तो आई वाज इंटरव्यू में भी, and even if the lecturate maybe the people were doing hand gestures, I was standing very straight with the hands at my back. तो हर जगह मेरे माइंड में ये था कि मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज चेक में रखनी है हमेशा. एंड आई थिंक इट प्लेड अ वेरी बिग रोल इन माय जर्नी. एब्सोल्युटली. बिकॉज लेक्चरेट में मैं थी एंड देयर वाज अनदर गर्ल. हम दोनों के अलावा किसी की भी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं थी. मैंने इसके बारे में इतना ज्यादा पढ़ा था कि मेरे माइंड में ये ऑलरेडी हो गया था कि इस चीज का ध्यान रखना ही रखना है. तो यस, देयर वाज अ बॉडी लैंग्वेज. एंड देन सेंटेंस, कमिंग टू द सेंटेंस पार्ट, आई एम एन इंट्रोवर्ट. मैं ज्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करती हूँ और मुझे बोलने की भी आदत नहीं है. तो मुझे अपना कुछ फिगर आउट करना था कि मैं कैसे वहां पे अपना पॉइंट गैदर कर सकूं. तो मैंने यही सोचा था कि सभी ये बोलते हैं क्वालिटी पॉइंट्स होने चाहिए बिकॉज क्वांटिटी डज नॉट मैटर, यू शुड हैव द क्वालिटी पॉइंट. तो मैंने क्या करा था, अब मुझे अपने लिए कोई स्ट्रैटेजी ढूंढनी थी. तो मैंने ये सोचा था कि क्वालिटी पॉइंट्स आई विल कीप देम वेरी शॉर्ट बिकॉज आपको बोलने का ज्यादा मौका नहीं दिया जाता. तो क्या करोगे आप, शॉर्ट पॉइंट्स ही रखोगे. तो आई विल कीप देम वेरी शॉर्ट. ओके. अमीषा, तुमने कहा यहाँ पे इंट्रोवर्ट. Now there is we have a forum wherein we welcome questions. तो वहां पे मुझे हर दूसरा जो कैंडिडेट होता है वो यही पूछता है कि मैम मैं इंट्रोवर्ट हूँ and I'm not able to express myself. Now you said that you are an introvert but you have actually done your best and you are recommended. तो मुझे ये समझना है कि ओके इंट्रोवर्ट हो आप, ओके दैट्स फाइन, लेकिन अपनी इस वीकनेस को ओवरकम कैसे करें? You raise the point of body language, accepted, well noted, and again the sentence completion. लेकिन क्या कॉन्डक्ट होना चाहिए पब्लिक स्पेस में या पीपल मैनेजमेंट में ताकि जो आप इंट्रोवर्ट हो उसके बाद भी आप अपनी बात तो रख सको? ओके, सो द फर्स्ट थॉट, आप खुद डिसाइड कैसे कर रहे हो कि आप इंट्रोवर्ट हो या आपकी कम्युनिकेशन. बहुत बच्चे ऐसा होता है, मैंने भी देखा है, कोरा पे क्वेश्चंस पूछते हैं, कमेंट्स पे क्वेश्चंस पूछते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है. आपने किसने आपको कहा है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है? आप खुद से कैसे डिसाइड कर रहे हो? तो पहली बात तो वो जो प्री कंसीव नोशन है माइंड में वो मत रखो कि आप इंट्रोवर्ट हो तो आप किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे या आप बोल नहीं पाओगे, या आप ये माइंडसेट मत रखो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है. बहुत बच्चे ऐसा होता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप डिस्कशन पहले से प्रैक्टिस करते हैं एसएसबी जाने से पहले, तो ताकि वो यूज टू हो जाए. अब मैंने वो चीज प्रैक्टिस नहीं की थी बिकॉज सपोज आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, दे विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक. वैसे फिश मार्केट नहीं बनेगी जैसी एक्चुअली बनती है वहां पे. तो मुझे नहीं लगा था, मुझे वो वेस्टेज ऑफ टाइम ही था कि यहाँ पे प्रैक्टिस करके क्या कर रहे हो. यू कैन रीड एंड देन क्वालिटी पॉइंट्स आपको वैसे भी आ जाएंगे. तो मैंने इस चीज के लिए प्रैक्टिस नहीं करा था. आपको जस्ट वहां पे
अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना है, एंड देन जब कोई भी थोड़ा सा भी साइलेंस होता है ना ग्रुप में, यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी। Okay. जरा सा भी कोई चुप हो रहा है, अपना पॉइंट क्विकली रख दो वहां पे। Okay. 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 तो दैट इज द वन पॉइंट जो हम सब ने ही यूज करा था ऑलमोस्ट ग्रुप में, बिकॉज वी वर फ्रेशर्स। तो जैसे हाँ. कोई चुप था ना कोई बोल देता था, फिर जब वो कोई फिनिश होता था तो मैं बोल देती थी। तो ऐसे ऐसे हमने पॉइंट्स रखे थे। बाकी जो Okay. पहले स्ट्रैटेजीज बनती हैं कि सबको बोलने का मौका दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, वैसा कुछ नहीं होता है। तो Okay. Okay. आप खुद ही वो पॉइंट निकालना है खुद के लिए, थोड़ा सा असर्टिव होना है, और देन आप क्विकली अपना पॉइंट रख देना है ताकि वो सुन ले सब। ये पॉइंट तो तुमने बहुत सही रेज किया कि अगर हम अपने फ्रेंड्स के बीच में ही प्रैक्टिस करेंगे देन ऑब्वियसली हमें चांस तो मिलेगा ही, और जो एक हाँ। रियल लाइफ जीडी का सिनेरियो होता है वो एक्चुअली में नहीं क्रिएट होता। दैट्स वेरी वेल सेड पॉइंट। बट नाउ अमिशा, लाइक होता क्या है ना कि व्हेन यू आर अ फ्रेशर तो कई सारे दिमाग में थॉट्स आते हैं कि मैं किसको सुनूं, किसको पूछूं। अगर आपके फैमिली में ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, then the one stop destination for most of the kids which come out is a coaching center. बट मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, और मैंने जिन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया है, दे आल्सो से दैट समवेयर डाउन द लाइन इट्स नॉट दैट बेनिफिशियल। आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, लाइक हैव यू डन कोचिंग? नो, मैंने कोचिंग नहीं नो। ली थी। या सो दिस क्वेश्चन एक्चुअली मेक्स मोर सेंस विद यू दैट व्हाई डिड नॉट यू जॉइन कोचिंग, और क्या तुम्हें लगता है कि कोचिंग सच में हेल्प करती है? सी व्हाट आई बिलीव इज दैट कोचिंग आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, वो आपको प्रोसेस के बारे में थोरली अवेयर करवाएगी, जस्ट दे वोंट डू Absolutely. एनीथिंग एल्स। एंड आज के सिनेरियो में क्या है, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है ऑलरेडी। तो यू कैन गो ऑन द इंटरनेट, यू कैन गेट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, किसका कैसा एक्सपीरियंस था, एंड देन वहां से आप पॉइंट कलेक्ट कर सकते हो कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। ऐसे Absolutely. कोचिंग में क्या होगा, वो आपको एक राइट डायरेक्शन दे रहे हैं जस्ट। बाकी इट ऑनेस्टली डिपेंड्स ऑन द कैंडिडेट कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, आप उसको कैसे इनकलकेट कर रहे हो। तो अब सपोज 2 कैंडिडेट्स हैं, वहां पे साइक की प्रैक्टिस करवाते हैं, वो साइक का एक पर्टिकुलर आपको बता रहे हैं कि ऐसे 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 आपको सेंटेंस फॉर्म करना है। नाउ देयर इज वन कैंडिडेट जो डिसाइड करता है कि मैं तो सेम सेंटेंस लिख के आऊंगा, ये प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट का सेंटेंस है, मैं सेम सेंटेंस लिख के आऊंगा, चाहे वो उसकी पर्सनालिटी से मैच हो या ना हो। नाउ देयर कम्स द सेकंड कैंडिडेट, वो क्या करेगा, उसको एज एन एग्जांपल लेके अपने खुद से ट्राई करेगा सेंटेंसेस फॉर्म करने का। तो यू कैन वेरी वेल गेस कि कौन रिकमेंड होगा, किसके लिए वो बेटर होगा। तो ऐसे ही कोचिंग में होता है, एंड आई थिंक इट इज सेम फॉर द, आप अगर खुद से भी प्रिपरेशन कर रहे हो कि इंटरनेट पे ऑलरेडी सबके आंसर्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो कि रिकमेंडेड कैंडिडेट कैसे लिख रहा था, वो अपने एग्जांपल्स देते हैं। अब आप सेम चीज वहीं पे करोगे, सेम आंसर्स लिख कर आओगे, तो इट विल गो अगेंस्ट यू। बट आप उसको एग्जाम्पल की तरह ले रहे हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। सपोज वन थिंग आई ऑल्सो वांट टू, कि अगर आप शॉर्ट ऑन टाइम हो, सपोज आप जॉब कर रहे हो या किसी और चीज के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कोचिंग ठीक है लेना, क्योंकि वो आपको शॉर्ट टाइम में प्रोसेस के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। बट Correct, इवन इफ यू correct. आर फ्री, अब जैसे लॉकडाउन था प्लस मैं ग्रेजुएशन ही कर रही थी, तो मेरे पास काफी टाइम था, तो मुझे ये था कि मैं खुद से कर लूंगी, ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है, इवन एक्स्ट्रा मटेरियल है ऑनलाइन। तो आई डोंट थिंक कि कोचिंग की कोई रिक्वायरमेंट है। Okay, okay, okay. So, Amisha, now there is a question for our team. We want to understand that were we able to help you in any aspect of your journey? यस, मैंने सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, मैं बहुत मटेरियल नॉलेज गेन करती थी एसएसबी के बारे में। सो आई केम अक्रॉस योर चैनल व्हेन आई वॉच्ड ओशीन्स इंटरव्यू। मैंने सबसे Okay. पहले उनका इंटरव्यू देखा था, काफी लॉन्ग इंटरव्यू था बट मैंने पूरा देखा था। तो वहां Okay. से मुझे आपका चैनल मिला था। देन मैंने प्लेलिस्ट चेक करती हूँ मैं, तो वहां पे मुझे जीपी की, मैंने जीटीओ लास्ट के लिए रखा था कि मैं लास्ट के डेज में प्रिपेयर करूंगी। तो जो वहां पे आई थिंक 4 या 5 एक्सरसाइजेस हैं, 4 या 5 वीडियोस अवेलेबल हैं। मैंने वहां से ही अपनी जीपी की प्रैक्टिस की थी, मैंने कहीं और से कुछ रेफर नहीं करा था। तो वहां पे आई थिंक मुझे काफी जेन्युइन पॉइंट्स लगे कि कैसे कैसे रिसोर्सेज को यूज करना है, कैसे टाइम बचाना है, तो वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल था। तो मेरी जीपी की जो प्रैक्टिस थी वो नेशन नीड्स यू से ही हुई थी, और कहीं से नहीं हुई थी। प्लस ओशीन्स का जो इंटरव्यू था वो मुझे काफी बेनिफिट लगा, मेरे लिए बेनिफिशियल था। उसकी जो साइड टेस्ट की स्ट्रैटेजी थी
कि आप जो एडवांस में प्रिपेयर करते हो वो ज्यादा बेनिफिट नहीं देता है। तो सेम चीज मैंने वही अप्लाई की थी, मैंने साइट के लिए ज्यादा प्रिपेयर नहीं करा था, तो उसका औशीन का जो इंटरव्यू था वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल था। मैंने जैसा परफॉर्म करा उसके लिए, प्लस जीपी के लिए तो वो था ही, मैंने जीपी की प्रैक्टिस ही वहीं से की थी जस्ट। Okay, so we are really वेरी glad to know. We are really glad to know, and we consider ourselves fortunate enough that we were of some help to you. Now, coming to yet another important thing, especially for flying branch, which is the medical test. For the flying branch, there are certain medical tests which are done extra for the candidates. So हमेशा ऐसे जो बच्चे होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो पहली बार जा रहे होते हैं मेडिकल्स के लिए, तो उनके दिमाग में ये डर रहता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे दे कैन स्टक. So please tell this for our audience कि कौन-कौन से extra medical tests थे which you went through. So there are only 3 extra medical tests जो फ्लाइंग के लिए करते हैं। फर्स्ट इज द एंथ्रोपोमेट्री वन, जिसमें वो आपकी सिटिंग हाइट देखेंगे, आपकी थाई लेंथ देखेंगे और आपकी लेग लेंथ देखेंगे। उसमें इवन इफ आप ज्यादा शॉर्ट नहीं हो या ज्यादा लॉन्ग नहीं हो, ज्यादा टॉल नहीं हो, तो इट विल बी ओके फॉर यू, एवरीवन गेट्स थ्रू इट, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है उसमें। द सेकेंड वन इज द स्पाइन वन, दे टेक योर एक्सरे एक्स्ट्रा सर्वाइकल एंड द लंबर स्पाइन जो है उसका थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सरे होता है। देयर आर 7-8 एक्स्ट्रा एक्सरे, सॉरी, तो वो भी, उसमें भी यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, सो उसके बारे में भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजीली हो जाता है। देयर आर वेरी लेस चांसेस की प्रॉब्लम आए। एंड द थर्ड वन इज द आई टेस्ट, in that they conduct the color perception test. For flying you need the CP1, so उसके लिए जो मार्टिन लेंटर्न टेस्ट होता है वो होता है, there will be a blackout in a room and you will be made to sit at the 6 meters from the lantern and you have to distinguish between the 3 lights, that is the red, green and the yellow, तो वो भी हो जाता है। that is the all 3 tests जो extra होते हैं for the flying branch, that's all. Okay, so the first one is your body measurement, जिसमें sitting height, leg length, and what was the third one which you said? Sitting height, leg length, and the thigh length. Okay, so first test जो होता है वो आपके measurements का होता है. दूसरा टेस्ट जो होता है वो आपके स्पाइन का होता है, जिसमें वो एक्सरे लेते हैं आपके स्पाइन का. ओके, और जो थर्ड टेस्ट होता है वो आई स्पेशली कलर विजन का टेस्ट होता है. ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस, बिकॉज हमें कई सारी क्वेरीज इसीलिए आती हैं कि फ्लाइंग के लिए व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट. Now, Amisha, there is another aspect which I would like to understand, that I don't know that whether you hold any defense background or not, but the most important thing in your case is that you decided it very early, right? You are only 20 and you decided that you want to go for defense forces. तो ये जो डिफेंस फोर्सेस में जाने की इतनी क्लैरिटी है, ये कैसे आई और कब तुमने डिसाइड किया that this is the path which I want to go further? So at the back of my mind स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत था, बिकॉज मेरे जो आसपास लोग हैं वो डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, जो मेरे मम्मा के कॉलीग्स हैं ऑल हैं, तो कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ माइंड था कि दिस कुड बी अ ऑप्शन, बट मैंने ज्यादा एक्सटेंसिवली उस पर सोचा नहीं था। तो धीरे धीरे जब मेरे फ्रेंड्स कोई एनडीए गया एंड देन सम ऑफ माय सीनियर्स वेंट टू द एएफए, तो मुझे आदत थी रीड करने की, तो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट करा उसके बारे में रीड करना कि ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या कल्चर है वहाँ पे, कितने टाइम पीरियड की है, डेली रूटीन कैडेट्स का क्या है। देन वीर बाय डिस्कवरी पे वीडियोस आनी स्टार्ट हो गई थी एएफए के बारे में, आई वॉच ऑल ऑफ देम। तो धीरे धीरे मैंने इसके बारे में इतना पढ़ लिया, एयरक्राफ्ट के बारे में मुझे थोड़ा पढ़ना बहुत पसंद था, उसके बारे में इतना पढ़ लिया कि लास्ट में आके लगा कि दिस इज समथिंग आई वांट टू डू। So, and the another point is that I cannot sit idle. I need something to do 24/7. तो flying मुझे अपने लिए best fit लगा था तब के लिए, because they are up to something new every day. कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं डेली, कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। तो मुझे अपने लिए अकॉर्डिंग टू माई पर्सनालिटी एंड मुझे जैसा अपना वे ऑफ लाइफ चाहिए, तो मेरे लिए डिफेंस फोर्सेस बेस्ट लगा मुझे। प्लस एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर मैंने धीरे धीरे ऑप्शंस कट आउट करने स्टार्ट कर दिए थे कि मुझे आईटी कंपनीज में नहीं जाना है, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है, मुझे कोर में नहीं जाना है, मुझे और कोई गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, दैट इज नॉट समथिंग आई वांट टू डू। तो लास्ट ऑप्शन जो मेरे माइंड में था तो वो डिफेंस फोर्सेस ही रहा था, एंड स्पेशली फ्लाइंग।
तो मैंने उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करा था। ओके बट अमीषा नाउ आई एम गोइंग टू आस्क वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन। जैसे ठीक है अपने ड्रीम्स अपनी जगह है, सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन रियलिटी चेक इफ विल डू एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स अगर मैं बात करूं, so you and me we both know, in fact all the girls who are watching this interview they also know that how difficult it is, because you know if you will clear everything then comes the merit, and I on my personal space know a lot of girls who get merit out, तो कहीं ना कहीं यू नो यू हैव टू कीप समथिंग एज एन ऑप्शन फॉर यू। तो उस एस्पेक्ट के लिए तुमने अपनी क्या स्ट्रैटेजी रखी है? लाइक आई विश कि डिफेंस फोर्सेस का जो तुम्हारा सपना है दैट गेट्स कंप्लीट, बट हमें रियलिटी चेक करना पड़ेगा, सो फॉर दैट व्हाट योर स्टैंड इज? सो वही बात होती है ना, आप धीरे धीरे सीखते हो। तो मैंने कोई बैकअप ऑप्शन नहीं रखा था। फॉर मी पर्सनली मुझे पसंद नहीं है कि मैं बैकअप ऑप्शन को ही लेके चलूं, बिकॉज सपोज वेन यू हैव अ बैकअप ऑप्शन आप 100% नहीं देते हो जिस चीज में आपको देना होता है, बिकॉज एट द बैक ऑफ माइंड ये रहता है कि चलो कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो वो तो है ही। तो मुझे वो माइंडसेट नहीं चाहिए था। मुझे ये था कि यही ऑप्शन है, यही करना है, गिव योर 100%। तो मैंने कोई बैकअप ऑप्शन नहीं रखा था एज सच, बट येस यू शुड कीप अ बैकअप ऑप्शन एटलीस्ट, बिकॉज मेरिट आउट के बहुत चांसेस हैं गर्ल्स में। इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल इवन इफ यू हैव अ हायर स्कोर इन द रिटर्न। सो गर्ल्स को तो एटलीस्ट बैकअप ऑप्शन कुछ ना कुछ रखना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। Absolutely. For an aspirant of defense forces, what would be your suggestion for career in forces? कि उसे कैसे prepare करना चाहिए, mindset क्या होना चाहिए, thought process क्या होना चाहिए, and you know the first and most important thing, dealing with failures. Because you know, be it any career choice, be it IAS, be it defense forces or IT or anything, so there are chances that you may face failures. तो as a recommended candidate, तुम्हारा क्या suggestion होगा aspirants के लिए? मेरा ये सजेशन होगा कि सेटबैक्स आएंगे इन द प्रोसेस। जब आप प्रिपेयर भी करोगे या आप एसएसबी के लिए जाओगे, फिर मेरिट आती है, देन सेटबैक्स होंगे। डोंट लेट इट गेट टू योर हार्ट, प्रिपेयर अगेन, प्रिपेयर विद योर फुल हार्ट एंड यू विल गेट थ्रू इट। बिकॉज सी लाइफ में सबके अप्स एंड डाउन्स आते ही रहेंगे, एंड सेम गोज फॉर द करियर इन द डिफेंस फोर्सेस। ऐसा नहीं होगा कि एसएसबी हो गई है, रिकमेंड हो गए हैं, मेरिटन हो गए हैं तो बहुत अच्छे लाइफ है। जब आप डिफेंस में होंगे तब भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो द वन थिंग दैट डोंट लेट इट गेट टू योर हार्ट। जोश रखो, कीप योर जोश हाई एंड प्रिपेयर करते रहो, अच्छा होगा सब। Okay. So that's really motivating. That keep your hopes high. But yes, setbacks are everywhere in every field. It has got its own loopholes and ups and downs. So it was really very, very wonderful talking to you, Amisha. And not only from my side, but from the whole team. I wish you luck for your future endeavors. And thank you so much for taking out time for the Nation Needs You. Thank you, Sagarika. Okay. So take care and see you soon in the academy. Jai Hind. Jai Hind. Bye-bye.